Welcome to English class Standard 4th Academic Year 2020-21. Hello students, how are you all? Yes, today I am here with another interesting topic for you all to learn. Before starting, I want to ask you some questions. Have you heard any stories now or when you were small or your teachers have narrated it to you? I hope it's yes, because when you were small, you have heard stories from your grandmothers, from your parents, and in the schools, in your lower classes, you have listened many stories from your teachers. Some stories, I think you must be knowing these stories: the thirsty crow, the lion and the mouse, hare and the tortoise. Today, we are going to learn a very interesting stories in your English Bal Bharati textbook chapter 2. The name of the chapter is Aesop's Fables. Look at the picture. Students, this is the picture of a person whose name is Aesop. Now you must be thinking, what do you mean by fables? Fables are the short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. His stories became so popular that people passed them from one generation to another generation. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. तो स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में यहाँ पे बहुत अच्छी 2 कहानियाँ सीखने वाले हैं जिससे हमें मॉरल्स या प्रोवर्ब्स मैसेजेस मिलते हैं. जैसे कि एसोप नाम का पर्सन था जो ग्रीस में रहता था. वो क्या करता था? वो बहुत सारी स्टोरीज़ लिखता था जिससे हम सीखते थे. और ये स्टोरीज़ लोग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मीन्स मतलब जैसे आपके दादा दादी को उनके मम्मी पापा ने सिखाई होगी, उनसे सुनी होगी या फिर उनके टीचर से सुनी होगी, फिर उन्होंने आपके मम्मी पापा को सुनाया होगा और आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया. उस स्टोरी से आपको कुछ मॉरल्स मिलते हैं. जैसे सम स्टोरीज़ ऐसी होती है जिनसे हमें मॉरल मिलते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. अगर हम झूठ बोलेंगे तो उसका फल क्या होगा. जैसे अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है. हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए. तो ये सब क्या है? ये सब मॉरल्स और मैसेजेस है जिससे हम स्टोरीज से सीखते हैं. उसी तरह आज भी हम ऐसे कोई स्टोरीज एसोप जो एक इंसान था उसने लिखी थी वो आज हम सीखने वाले हैं. आई होप यू विल एंजॉय इट. Our today's story name is The Stag at the Pool. Let's start with the story. One day, a beautiful stag, here stag means a male deer, came to a pool of clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection. Now, reflection means what, students? The image of something in a mirror or water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curving antlers. How they add to my beauty. How graceful they look. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs. Oh, they are so ugly. All spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. Students, antlers means horns that grow on the head of a male deer. And disgusted means feeling strong dislike or disapproval. Spindly means very long and thin. Worthy means deserving respect or admiration. Stately means grand. As he was brooding means thinking sadly for a long time. In this way,
The stag heard an arrow going swish. Swish means to move quickly through the air, making a soft rushing sound. At the same time, he picked up the scent of hunters. With a quick turn, he bounded away. His legs carried him swiftly into the forest. Bounded means to run with long steps. The hunters were hot on his trail. Hot on his trail means, students, very close to him, about to catch him. But they were no match for his speed. It means they are not equal to something. Soon the stag left the hunters far behind. Safe and out of the hunters reach, the stag slowed down. Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. So students, till here what we have understood from this story, that यहाँ पे एक स्टैग मीन्स अ मेल डियर, यहाँ पे एक स्टैग है मेल डियर। एक दिन क्या होता है, वो पानी के पास, पूल के पास जाता है पानी पीने के लिए। फिर वो क्या करता है, जैसे वो पानी पीने के लिए बेंड होता है, वो अपनी खुद की परछाई देखता है ना पानी में। इट हैपन्स ना, आप भी जब मिरर में देखते हो शीशे में, तो आपको आपकी ही इमेज दिखती है ना, सेम वे। तो वैसे ही वो मेल डियर ने क्या किया, खुद की इमेज देखी और वो बहुत खुश हो गया खुद को देख कर कि मैं कितना अच्छा लगता हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे कितनी ब्यूटीफुल एंटलर्स है, उसके जो हॉर्न्स थे, सिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, मैं कितना अच्छा हूँ। ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। फिर क्या होता है, जैसे वो अपने लेग्स के पास देखता है, उसके पैर, अगर आप लोग ने डियर्स देखे होंगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, उनकी जो सिंग होती है वो भी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, बट उनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े से अगली दिखते हैं। इट्स नॉट लुक गुड। अगर हम देखते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत गंदा लगने लगता है देखकर। तो वैसे ही वो मेल डियर, जो स्टैग नेम है इसमें दिया है स्टोरी में, वो देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ लेकिन सिर्फ मेरे लेग्स कितने ख़राब है, बोलता है कितने अगली है, मतलब वो खुद खुश नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे गॉड ने ऐसे कैसे क्रिएट किया, मैं इतना अच्छा हूँ, इतने अच्छी एंटलर्स है, तो मुझे इतने ख़राब पैर क्यों दिए। फिर क्या हो जाता है, सडनली वो जैसे पानी पीने लगता है तो उसको एरो की आवाज़ आती है। वहाँ पे एरो, यहाँ पे पता है तीर, जैसे शिकारी लोग जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको शिकार करना होता है वो तीर मारते हैं उनको, ताकि वो शिकार करके उनको मार सके, पकड़ सके। ठीक है, तो उससे आवाज़ आती है। तो फिर वो जैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है, वो वहाँ से बहुत फास्ट भागता है। और डियर्स पता है ना आपको, बहुत फास्ट रन कर सकते हैं। तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है और वो हंटर्स उससे बहुत दूर पहुँच जाते हैं और हंटर्स उसकी स्पीड का कोई मैच नहीं कर पाते, वो इतना फास्ट भागने लगता है। फिर लेकिन क्या हो जाता है, वहाँ पे एक थिकेट होता है। थिकेट मीन्स व्हाट, अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रीज, बुशेस एक्सेट्रा ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। अगर आप गए होंगे कहीं पे जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, या फिर आप जब जू में भी गए होंगे तो वहाँ पे देखोगे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज, बुशेस, वो क्या होते हैं, एक साथ ग्रो होते हैं, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी एंटलर्स फंस जाती है। Now students, let's move further. What is happening in the story? Let's see. There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled. Means what? He got caught in something. His antlers got in the branches. Once again, the stag could hear the hunters drawing close. Drawing close means coming nearer, and grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often, we dislike the very things that are most useful to us. Students,
तो जैसा कि आपने स्टोरी में अभी देखा कि जो मेल डियर स्टैग होता है उसके एंटलर्स फंस जाते। ये वही एंटलर्स है, उसके सिंग है जिस पे वो बहुत प्राउड फील हो रहा था, उसे बहुत गर्व हो रहा था कि कितने अच्छे, मैं कितना हैंडसम सुंदर दिखता हूँ। लेकिन आज उसी सिंग की वजह से क्या हो गया, वो मर भी सकता था क्योंकि उसकी जो सिंग है वो ब्रांचेस में, पेड़ में फंस चुकी है और अब उसके पीछे शिकारी आ रहे। अब वो क्या करेगा, तो उसको अपनी जान बचाने के वो इसलिए क्या करता है, अपनी सिंग को पूरा ऐसे पूरी जान लगाकर हिलाता है, उसको इधर उधर घुमाता है, शेक करता है कि मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वापस से जो हंटर्स थे जो दूर थे उससे, वो पास आ जाते हैं और फिर वो कैसे भी करके बहुत ही कठिनाइयों से अपने सिंग को वहाँ से निकाल के चला जाता है। फिर उसे समझ आता है, उसको रियलाइज़ होता है कि जिस पैरों को मैं बोल रहा था कि बहुत गंदे दिखते हैं, अगली है, आज उन्हीं की वजह से मेरी जान बच पाई। और जिस एंटलर सिंग पर मैं बहुत प्राउड गर्व फील कर रहा था, बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, आज उसी की वजह से मेरी जान जा सकती थी। तो इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलती है, दैट वेरी ऑफन वी डिसलाइक द थिंग्स दैट आर दी मोस्ट यूजफुल टू अस। मीन्स क्या होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम वो चीज़ों से बहुत नापसंद करते, पसंद नहीं करते, जबकि वही चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है ना, अगर मम्मी हमें घर पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने देती है तो हम नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि हमें पिज़्ज़ा बर्गर ये खाना पसंद है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हम हेल्दी होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सेम वे ऐसा ही स्टोरी में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो डियर था उसे पता था कि उसे बाद में ये समझ में आ गया कि मेरे पैर मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर आज मेरे पास यही अगली पैर जो लेग्स है नहीं होते तो मैं नहीं भाग पाता और नहीं अपनी जान बचा पाता। तो हमें इससे ये मॉरल मिलता है कि वी शुड नॉट डिसलाइक एनीथिंग अबाउट अस, ओके, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर समवेयर और something is very important to us. I hope you have understood this story and you had enjoyed the story. So students, what you all have to do, if you have the textbook with you, read the story, and the next story, part 2 story of this lesson, we will learn in the next session. By the time, complete all the homework of this video given by your teacher. Okay students, thank you for watching this video. After watching this video, what you all have to do, yes, you have to subscribe the channel for getting the more videos. Okay students, bye bye, have a nice day, take care.